Hello, good morning students. Today we are going to discuss about temperature of ocean waters, right? You know very well that ocean waters get heated up by solar energy, isn't it? But it gets heated late than land portion. Okay? So what we have to do, the process of heating and cooling of the ocean water is slower than land, isn't it? So there may be some factors that affect, temperature distribution that we are going to study. Okay? These factors may be latitude, unequal distribution of land and water, then prevailing winds, then ocean currents. So these are the factors. First one is latitude. Latitude, you know very well. You know, the temperature of surface water decreases from equator towards pole. Why it is so? It is because incoming solar radiations, they travel large distances. That's why they lose their heat in atmosphere. And finally, when they reach on the surface, it becomes quite cooler than equator. Okay, so amount of insulation decreases poleward, means when we move towards pole, amount of solar radiation or insulation, it decreases. Then comes unequal distribution of land and water. This is no doubt, है ना? Oceans in the northern hemisphere, if oceans in the northern hemisphere receive more heat because the maximum insulation falls in northern hemisphere because it has large land mass. Okay, so what happens here, you know oceans in the southern hemisphere, they receive less insulation. Clear? However, they receive insulation, but because of water bodies, they do not become warmer. Clear? Then prevailing winds. The winds blowing from the land towards the oceans drive warm surface temperature water, understand, and it moves towards water bodies. Clear? And starts heating cold waters. Clear? Means the movement of wind, it results into the longitudinal variation in the temperature. Okay, so the onshore winds pile up warm water near it. Okay, and raises the temperature. Right, children? Then you have got another factor, that is ocean currents. Clear? Warm ocean currents raises the temperature in cold areas. Clear? While the cold currents decreases the temperature in warm ocean areas. Right? Gulf Stream, that is warm current, it raises the temperature, right, near the eastern coast of North America. Clear? The eastern coast of North America, it is heated up. And Labrador current, that is cold current. Labrador current is cold current. Clear? It lowers the temperature near northeast coast. Okay, so this one, whenever you are watching this one, what is happening, these factors, they influence temperature of the ocean currents locally. Okay, children? And the enclosed sea in the लो लैटिट्यूड्स, जो हमारे लो लैटिट्यूड के सी हैं, लो लैटिट्यूड मीन्स टूवर्ड्स इक्वेटर, equatorial regions have lower latitudes. Understand? What will happen? They will have relatively higher temperature, right, children? So it will create, high temperature in low latitude area, that is between 0 to 30 degree north and south. They are lower latitudes. Okay, children? So in this manner we can understand that the enclosed sea in high latitudes, दे हैव लोअर टेम्परेचर. जब आपका लैटिट्यूड हाई होगा, यानी 30 से 31, 32, 33 टूवर्ड्स 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ पोल, what will happen? Your temperature will lower down. Understand? It will decrease. Right, children? So what you are having,
horizontal and vertical distribution of temperature, that is quite important, that you must try to understand horizontal and vertical distribution of temperature. That is the temperature depth profile for the ocean water shows how the temperature decreases with the increasing depth. ठीक है, जैसे जैसे हमारी डेप्थ बढ़ती जाती है टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करता है. ठीक है, एंड द प्रोफाइल अगर आप इसका देखेंगे तो यू विल ईजिली अंडरस्टैंड. हमने क्या देखा कि 100 से 400 मीटर बिलो, ठीक है, हमारा जो है 100 से 400 मीटर बिलो द सी सरफेस एक्सटेंड्स सेवरल 100 meters and downward, and this boundary region here we will have rapid decrease in temperature. Your temperature decreases rapidly, and about 90% of the total volume of water, clear, it is found below thermocline in the deep ocean. मीन्स थर्मोक्लाइन क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. सो द टेम्परेचर स्ट्रक्चर ऑफ ओशंस ओवर मिडिल एंड लो लैटिट्यूड्स, राइट, विल बी डिस्क्राइब्ड एज 3 लेयर सिस्टम. इसी को हम 3 लेयर सिस्टम कहते हैं. क्लियर. फर्स्ट लेयर में क्या होता है, अबाउट 500 थिक होता है जो हमारा फर्स्ट लेयर है, और ये लेयर ऑफ वार्म वाटर होता है, टॉप लेयर जो कि वार्म वाटर होता है. क्लियर. सो इन दिस वे इट इज़, क्या होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस इट रिकॉर्ड्स, एंड दिस लेयर विद इन द ट्रॉपिकल रीजन, ये लेयर आपका ट्रॉपिकल रीजन होता है, एंड इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर, बट इन मिड लैटिट्यूड्स इट डेवलप्स ओनली ड्यूरिंग समर. क्लियर. देन सेकेंड लेयर इज नोन एज थर्मोक्लाइन लेयर. ठीक, ये हमारा लेयर कहाँ पे राइज कर, पता है, थर्मोक्लाइन लेयर हमारा 500 से 1000 मीटर थिक है. और थर्ड लेयर जो है हमारा वेरी कोल्ड. ठीक है, और ये डीप ओशन फ्लोर को शो करता है. अंडरस्टैंड, थर्ड लेयर. सो इन दिस वे यू कैन वॉच दिस ग्राफ टू अंडरस्टैंड दिस वन. अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं, क्लियर, देन व्हाट विल हैपन, जस्ट सी. ये हमारा ग्राफ है. क्लियर चिल्ड्रन. इस ग्राफ में आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग टेम्परेचर, राइट. ये जो हमारा इंक्रीजिंग टेम्परेचर है, यहाँ पे आप क्या देखोगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, एंड ये थर्मोक्लाइन पोजीशन शो करता है. ठीक है, तो आप देख रहे हो 0 से 500 के बीच में जो टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है, नियर अबाउट 1000 मीटर तक टेम्परेचर आपका तेज़ी से थोड़ा डिक्रीज़ करता है, इसका स्लोप ज़्यादा है. लेकिन 1000 से 4500 के बीच में ये टेम्परेचर आपका बहुत ही स्लोली इंक्रीज़ होता है, स्लोली डिक्रीज़ होता है. क्लियर, बहुत धीरे धीरे डिक्रीज़ होता है, एंड 4500 मीटर तक जाते जाते ये और नीचे 0 हो जाता है. ओके. सो इन दिस वे वी कैन easily understand the thermocline graph. Understood? So children, here you are getting अंटार्कटिक सर्कल की अगर हम बात करते हैं, अंटार्कटिक सर्कल, राइट. तो अंटार्कटिक सर्कल्स का हमारा जो सरफेस है, राइट, तो ये हमारा अंटार्कटिक सर्किल है. ठीक, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस के पास होता है. ठीक है, अंटार्कटिक सर्किल में, एंड सो द टेम्परेचर चेंज विद द डेप्थ. ठीक है, इससे टेम्परेचर भी हमारा चेंज होता है डेप्थ के साथ. और हियर ओनली वन लेयर ऑफ कोल्ड वाटर एग्जिस्ट, वार्म वाटर का लेयर तो होता ही नहीं है. अंडरस्टूड. एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर of the ocean is about 27 degrees Celsius, very important point, and it gradually decreases from the equator towards the pole, and the rate of decrease of temperature with increasing latitude is generally 0.5 degrees Celsius per latitude, and the average temperature is around 22 degrees Celsius at 20 degree latitude. ठीक है, and 14 degrees Celsius at 40 degree latitude, and 0 degree Celsius near pole, no doubt. So the oceans in the northern hemisphere, हमारे northern hemisphere के जो oceans हैं, they record relatively higher temperature, क्योंकि वहाँ जो हमारा टेम्परेचर बेल्ट है वो थोड़ा शिफ्ट कर जाता है नॉर्दर्न बेल्ट की तरफ. क्लियर.
दैट्स वाई वहाँ पे हमारा टेम्परेचर थोड़ा हाइयर होता है सदर्न की अपेक्षा। सदर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर लो माना जाता है। ओके, सो द हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ नॉट रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं रिकॉर्ड हुआ, लेकिन थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाने पे ये हाईएस्ट टेम्परेचर आया है। एंड द एवरेज एनुअल टेम्परेचर फॉर नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर ये 19 डिग्री सेल्सियस और 16 डिग्री सेल्सियस। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एवरेज टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस एंड सदर्न का जो है हमारा 16 डिग्री सेल्सियस है। ओके चिल्ड्रन, सो दिस वेरिएशन इज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड एंड वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्वाइट अनइक्वल, दैट्स व्हाई इट हैपेंस, राइट। हाँ, सो चिल्ड्रन यू नो वेरी वेल द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द ओशन, हमारा जो ओशन का मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज एट देयर सरफेस। हमेशा सरफेस पर ही मैक्सिमम टेम्परेचर होता है ओशन का, ठीक है। एंड इट रिसीव द हीट फ्रॉम द सन, ठीक है, क्योंकि सरफेस पहले हीट रिसीव करेगा और जो हमारे लोअर बेल्ट है, लोअर लेयर है, वहाँ बाद में हीट पहुँचेगा। तो डेफिनेटली सरफेस टेम्परेचर इज़ हाई एंड द हीट इज़ ट्रांसमिटेड टू लोअर सेक्शन बाय कॉन्वेक्शनल करंट। कॉन्वेक्शनल करंट डेवलप होता है एंड द टेम्परेचर फॉल्स वेरी रैपिडली अप टू द डेप्थ ऑफ 200 मीटर। 200 मीटर की गहराई पर जाने पर बहुत तेज़ी से हमारा टेम्परेचर फॉल करता है एंड देयर आफ्टर द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज स्लो डाउन व्हेन वी गो टूवर्ड्स 4500 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर के नीचे जाने पर जब हम थर्मोक्लाइन को डिस्कस करते हैं तो उसमें आप देखते हो 1000 तक तो तेज़ी से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है, बट आप बिलो डेप्थ ऑफ 1000 मीटर टूवर्ड्स 4500 मीटर ये जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर इट इज़ वेरी लो, डिक्रीज बहुत लो है, ठीक है। सो इन दिस मैनर वी कैन डिस्कस temperature of ocean, sea water, clear, when we go towards depth portion, right children. This is all about the temperature of thermocline area. And now I am going to take up a new topic, that is salinity of ocean waters. Ocean water, what is salinity? Means 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितना आपका सॉल्ट है, कितना ग्राम सॉल्ट है। अगर एक 1000 ग्राम ऑफ वाटर ले लो, उसमें कितना ग्राम सॉल्ट है, दैट इज सैलिनिटी ऑफ वाटर। क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये जो हमारा सैलिनिटी ऑफ वाटर है इट डिफर, इट वैरीज, क्लियर, एंड देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। क्लियर चिल्ड्रन, you have got the content of salt dissolved in sea water is salinity, and the salinity is recorded in the form of 1000 gram water. If whatever salt is present in gram, that is salinity of that particular sea water, understand। तो ये हमारी इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सैलिनिटी। सैलिनिटी हमारे सी वाटर की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऑन बिहाफ ऑफ सैलिनिटी वी डिस्क्राइब एंड वी डिफ्रेंशिएट सी वाटर, क्लियर। एंड salinity of 24.7 डिग्री हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द अपर लिमिट। अभी तक हमारा 24.7 डिग्री को अपर लिमिट तक माना गया है। और इस ऐसे वाटर को जिसका सैलिनिटी 24.7 है, इसका मतलब क्या है कि 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर में 24.7 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है। इसका मतलब ऐसे वाटर को हम ब्रैकिश वाटर बोलेंगे। ब्रैकिश वाटर मीन्स सैलाइन वाटर हैविंग लार्ज सॉल्ट क्वांटिटी, क्लियर, ब्राइन सॉल्यूशन you can say. So there are several factors that affect salinity, clear. Let us talk about one by one. The very first chapter is, the very first factor is salinity depends on surface layer, ठीक है। जो है वाटर सरफेस लेयर ओशन का कैसा है, वहाँ पे एवापोरेशन कैसा, तेज एवापोरेशन है, प्रेसिपिटेशन वहाँ कैसा है, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा कि उस सरफेस वाटर का सैलिनिटी कितना है, ठीक है। अगर फास्ट एवापोरेशन है तो ज़्यादा सैलाइन, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है तो लो सैलाइन, क्लियर।
देन सरफेस सैलिनिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय कोस्टल रीजन, जो हमारा कोस्टल रीजन होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेश रिवर वाटर आता है, ठीक है, बहुत सारे रिवर्स दे फॉल्स इन सी, ठीक है, तो फ्रेश रिवर वाटर उसकी सैलिनिटी कम होती है, और जब हाई सैलाइन वाटर में मिक्स होगा तो उस पार्टिकुलर एरिया की सैलिनिटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो हमारा जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ यू कैन से दैट इज दिस वाटर बिकम्स क्वाइट डाइल्यूट, जैसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वाटर डाल देते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है, इसी तरीके से हमारा जो सॉल्टी वाटर है जब उसमें रिवर वाटर आएगा तो डेफिनेटली, ठीक है, वो डाइल्यूट होगा और ये फ्रीजिंग प्रोसेस एंड थॉविंग ऑफ आइस मीन्स मेल्टिंग ऑफ आइस, क्लियर, तो इस पर भी जो है क्या कहते हैं हमारी सैलिनिटी डिक्रीज करती है। सेकंड, विंड एक फैक्टर है जो कि हमारे सैलिनिटी को बहुत अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि इट ट्रांसफ़र वाटर टू अदर एरियाज़, जब ज़्यादा विंड होगा तो सी की जो वेव्स हैं वो डेवलप होंगी, और अदर एरिया में जब वेव्स जाएंगी डेफिनेटली सैलिनिटी विल बी अफेक्टेड। ओके, नेक्स्ट वन इज द ओशन करंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स, वार्म एंड कोल्ड, इजंट इट, तो हमारी जो सैलिनिटी है इट डिपेंड्स ऑन इट इज़ इंटर रिलेटेड, ठीक है, वाटर की डेंसिटी से हमारी ये सैलिनिटी इंटर रिलेट करती है, राइट चिल्ड्रेन, एंड दिस इंटर रिलेशन, क्लियर, चेंजेस द टेम्परेचर एंड डेंसिटी। ओके, तो इससे क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर और डेंसिटी है ये पूरी तरीके से अफेक्टेड हो जाती है, right children, so this is all about salinity of ocean water. Then we are going to discuss about horizontal distribution of salinity. Horizontal distribution of salinity, when we talk about normal open ocean ranges, हमारा ओशन की जो नॉर्मल ओशन है उसकी सैलिनिटी 33 डिग्री से 37 तक जो है सैलिनिटी होती है, ठीक है, मीन्स 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर में, राइट, 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर, हमारा जो सी वाटर का जो 1000 ग्राम है उसमें 33 ग्राम अगर हमारी जो है सॉल्ट प्रेजेंट है तब उसकी सैलिनिटी 33 होती है, तो 33 से 37, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारी ये वाटर की सैलिनिटी है, राइट चिल्ड्रन, सो इन दिस मैनर वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और इन द लैंड लॉक्ड रेड सी, हमारे अगर रेड सी की बात करते हैं, ठीक है, लैंड लॉक्ड रेड सी, वहाँ की सैलिनिटी सबसे हाई है 41 डिग्री, मीन्स 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर इट कंटेन 41 ग्राम ऑफ सॉल्ट, ठीक है, और अगर हम एस्चुरीज की बात करें और आर्कटिक्स, ठीक है, वहाँ की सैलिनिटी हमारी 0 से 35 डिग्री के बीच में पाई जाती है, ठीक है, एस्चुरीज एंड आर्कटिक्स, ठीक है, जैसे आर्कटिक ओशन है, तो सैलिनिटी फ्लक्चुएट फ्रॉम 0 to 35, ठीक है, और सीजनली अगर हम बात करें तो ये फ्लक्चुएशन वैरी करता है, क्योंकि हमारा विंटर सीजन आता है फिर समर सीजन आता है, ठीक है, तो उस पर हमारी सैलिनिटी अफेक्टेड हो जाती है। इन हॉट एंड ड्राई रीजन्स, हमारा जो हॉट और ड्राई रीजन्स है, ठीक है, वेर एवापोरेशन इज़ हाई, जहाँ पे एवापोरेशन बहुत तेज़ होता है वहाँ तो भाई सैलिनिटी 70 डिग्री तक पहुँच जाती है, मीन्स 1000 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 70 ग्राम ऑफ सॉल्ट, जहाँ का एवापोरेशन और टेम्परेचर हाई है, ठीक है, वहाँ की सैलिनिटी की बात हो रही है, राइट चिल्ड्रन, तो द सैलिनिटी वेरिएशन की अगर हम बात करते हैं तो इन द पैसिफिक ओशन इज़ मेनली ड्यू टू द शेप, पैसिफिक ओशन में हमारा शेप एंड लार्जल एरियल एक्सटेंट जो होता है उस पर भी सैलिनिटी वैरी करती है, ठीक है, सैलिनिटी हमारी 35 डिग्री से 31 डिग्री तक डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, कहाँ पे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हम जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के वेस्टर्न पार्ट में जाते हैं तब हमारी सैलिनिटी 35 से ले करके 31 तक पहुँच जाती है, राइट चिल्ड्रन, तो ऑन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्लियर, हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है ये सैलिनिटी डिक्रीज करती है,
क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेल्टेड वाटर मिक्स होता आकर के, पानी जो हमारा मेल्ट हो जाता है ग्लेशियर से, वहाँ मिक्स होगा तो डेफिनेटली वो डाइल्यूट होगा। ठीक है, तो सैलिनिटी घटनी ही घटनी है। ठीक है, स्पेशली आर्कटिक रीजन में ये चीज़ें ज़्यादा होती है। सो इन द सेम वे 15 डिग्री से 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में अगर हम जाते हैं, यानी कि अगर हम लैटिट्यूडिनल की बात करते हैं तो 15 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में हमारी सैलिनिटी डिक्रीज होकर के 33 डिग्री तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये है हमारा एवरेज सैलिनिटी ऑफ अटलांटिक ओशन। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एवरेज सैलिनिटी ऑफ अटलांटिक वाटर इज 36, मीन्स 1000 ग्राम में 36 ग्राम सॉल्ट होता है किसमें? अटलांटिक ओशन में। दैट सेपरेट्स यूरोप, साउथ अफ्रीका विद नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, दैट इज अटलांटिक ओशन, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो वहाँ की सैलिनिटी 36 होती है। एंड द हाइएस्ट सैलिनिटी इज रिकॉर्डेड बिटवीन 15 एंड 20 डिग्री लैटिट्यूड। जब हम 15 डिग्री और 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जाते हैं तब वहाँ हमारे सी वाटर की सैलिनिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, और मैक्सिमम सैलिनिटी हमारी रिकॉर्ड हुई है 37। ठीक है, दैट इज़ ऑब्जर्व्ड बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में। ठीक है, और उधर हमारा 20 डिग्री वेस्ट एंड 60 डिग्री वेस्ट जो कि हमारा लॉन्गिट्यूडिनल है। तो ये क्या है, ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है नॉर्थ की तरफ। जैसे जैसे हम लोग नॉर्थ साइड में जाते हैं हमारी सैलिनिटी घटती जाती है। ठीक है, तो ये सब कुछ ट्रेंड है जिसे हमें माइंड में रखना है। एंड द नॉर्थ सी की अगर हम बात करें तो इसके लोकेशन की जब बात करें तो ये हाइयर लैटिट्यूड है, यहाँ पे हाइयर सैलिनिटी है। क्यों? मोर सैलाइन वाटर ब्रॉट बाय नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, हमारी जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये ज़्यादा सैलाइन वाटर लेकर आती है, इसलिए इस एरिया की सैलिनिटी हाई हो जाती है। अभी हम बात करते हैं बाल्टिक सी, ये यूरोप के पास है। ठीक है, बाल्टिक सी जहाँ पे एक शिप अभी डूबा था। बाल्टिक सी रिकॉर्ड्स लो सैलिनिटी, वहाँ की सैलिनिटी लो है, यानी कि वहाँ का जो है क्या कहते हैं डेंसिटी वाटर की घट गई, इस वजह से वहाँ शिप बहुत जल्दी सिंक कर जाती है। ठीक है, और इसमें जो है यहाँ पे बाल्टिक सी में बहुत सारी रिवर वाटर्स आती, यूरोपियन जो है जो हमारा यूरोप है वहाँ बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिसका रिवर वाटर हमारे बाल्टिक सी में गिरता है। इसी तरीके से मेडिटेरियन सी रिकॉर्ड्स हाइयर सैलिनिटी, जो हमारा मेडिटेरियन सी है जहाँ से साइक्लोनिक डिस्टरबेंस आता है। ठीक है, वो हमारा क्या है, हाइयर सैलिनिटी है ड्यू टू हाई एवापोरेशन, क्योंकि यहाँ एवापोरेशन बहुत तेज़ है। ठीक है, एंड इसके अलावा जो है हमारा जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी की सैलिनिटी सबसे कम, वेरी लो। राइट चिल्ड्रन, सैलिनिटी ऑफ ब्लैक सी इज़ वेरी लो। राइट, और इसके साथ साथ आप एटलस में भी देखेंगे तो वहाँ ब्लैक सी जो है वहाँ पे बहुत सारी रिवर्स ज्वाइन करती है ब्लैक सी को। ठीक है, बहुत सारा रिवर वाटर ब्लैक सी में आके गिरता है यूरोपियन कॉन्टिनेंट का। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट। एंड द एवरेज सैलिनिटी ऑफ इंडियन ओशन इज़ 35 डिग्री। ठीक है, हमारा जो हिंद महासागर है इंडिया के नीचे उसकी सैलिनिटी 35 है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है किस ओशन की कितनी सैलिनिटी है, इस पे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। एंड द लो सैलिनिटी ट्रेंड हमारा बे ऑफ बंगाल का है। बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी बहुत कम है, और अरबियन सी जो है ये भी हाइयर सैलिनिटी है, क्योंकि अरबियन सी में केवल दो ही नदियाँ गिरती है, नर्मदा और तापी, तो यही थोड़ा सा सैलिनिटी डिक्रीज़ करती हैं, अदरवाइज़ इसकी सैलिनिटी हाई है। जबकि बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी रिवर्स आके गिरती हैं, हिमालयन रिवर्स एज वेल एज पेनिनसुलर रिवर्स, इसलिए बे ऑफ बंगाल की जो हमारी सैलिनिटी है लो है। ठीक है, और इंडियन ओशन में कोई भी नदी नहीं गिरती तो उसकी भी सैलिनिटी हाई है। राइट चिल्ड्रन, तो ये था हमारा ऑल अबाउट। अभी हम आपको एक फिगर दिखाते हैं, दैट फिगर विल शो हाउ मच सैलिनिटी इज़ देयर। ठीक है, अभी इस फिगर में हम लोग देखते हैं अबाउट दिस फिगर, ये आपकी बुक का पिक्चर है। ठीक है, ये बुक में आप देख सकते हो इस तरीके से आपकी सैलिनिटी का ये ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे सैलिनिटी एट द सरफेस इंक्रीजेज बाय लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि हमारा जो इक्वेटर है, ठीक है,
ये जो हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे सनरेज डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए एवापोरेशन हाई है, इसलिए इस एरिया की सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जो है जब हम लोग पोल की तरफ जाते हैं तो रिड्यूस होता जाता है, ठीक है। और जहाँ जहाँ हमारा फ्रेश वाटर इनपुट होता है, सच फ्रेश वाटर वेयर इट इज़ गोइंग टू बी इनपुट, तो ये सब क्या है, ये रिवर्स की वजह से वहाँ सैलिनिटी घट जाती है। तो सैलिनिटी एट डेप्थ इज़ वेरी मच फिक्स्ड। जैसे जैसे हम लोग सी वाटर के डेप्थ में जाते हैं तो हमारी सैलिनिटी एकदम कांस्टेंट हो जाती है, फिक्स हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अब कोई वाटर लॉस नहीं हो रहा है, ना तो एकदम हमारा बॉटम में ना तो एवापोरेशन होगा, ना ही कोई फ्रेश वाटर उसमें मिक्स होगा, ठीक है, और ना ही कोई सॉल्ट ऐड होगा। तो ये क्या है, इट मार्क डिफरेंस इन द सैलिनिटी बिटवीन द सरफेस जोन, और जो हमारा डीप जोन ओशन है वहाँ की सैलिनिटी कांस्टेंट रहती है। सो द हायर सैलिनिटी कहाँ होगी, जहाँ वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिस सी की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ की सैलिनिटी भी ज़्यादा होगी। एंड सैलिनिटी जनरली इंक्रीजेज विद डेप्थ, ठीक है, और डेप्थ के साथ साथ ये इंक्रीज भी होगा। एंड देयर इज डिस्टिंक्ट जोन कॉल्ड हैलोक्लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हैलोक्लाइन। हैलोक्लाइन एक डिस्टिंक्ट जोन है वेयर सैलिनिटी इंक्रीजेस शार्पली, ठीक है, द जोन इन सी वाटर वेयर सैलिनिटी इंक्रीजेस शार्पली, जहाँ पे हमारा अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन मीट करता है वहाँ पे हमारा हैलोक्लाइन बनता है। एक्चुअली देखा जाए तो हमारा अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, क्योंकि जो है हमारा अटलांटिक ओशन है उसकी सैलिनिटी लो है और पैसिफिक ओशन की सैलिनिटी हाई है, ठीक है। इस वजह से ये दोनों वाटर मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग सैलिनिटी ऑफ सी वाटर कॉजेज इट्स डेंसिटी टू इंक्रीज, जब सैलिनिटी बढ़ती है तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगा। और हाई सैलिनिटी हमारा सी वाटर तो जनरली सिंक बिलो द लोअर सैलिनिटी वाटर, ठीक है। जो हमारी हाई सैलिनिटी लेयर होती है वाटर की, वो लोअर सैलिनिटी वाले वाटर के नीचे सिंक कर जाती है, मतलब कम सैलिनिटी ऊपर, हाइयर सैलिनिटी नीचे, क्योंकि उसका वेट बढ़ जाएगा। और इसी को हम कहते हैं स्टार्टिफिकेशन बाई सैलिनिटी। ये रिवर वाटर में भी होता है स्टार्टिफिकेशन, मतलब हाई डेंसिटी की या हायर सॉल्टी लेयर ऑफ वाटर इट सिंक, वो नीचे चला जाता है, और जिसकी सैलिनिटी कम होती है वो ऊपर रह जाता है। इसी को हम कहते हैं स्टार्टिफिकेशन। ओके चिल्ड्रन, so this is all about this chapter, right? And we are coming to our topic, right? And in this one हमने देखा कि किस तरीके से हमारे सरफेस ऑफ वर्ल्ड ओशंस पे हमारी सैलिनिटी कैसे वैरी करती है। तो यहाँ आपने स्पष्ट देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की सैलिनिटी कम है, सदर्न हेमिस्फीयर की सैलिनिटी क्वाइट हाई, ठीक है, और ज़्यादातर सैलिनिटी हमारी 0 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के बीच में है। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। Thank you for watching this class. Okay children, so I am going to